सेंटर फॉर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन स्टडीज़ दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में मैं ज्योति त्रेहन शर्मा, सेंटर की जॉइंट डायरेक्टर, आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। संगोष्ठी का हमारा आज का विषय है विभाजन का वृत्तांत, आघात से साक्ष्य तक, द नैरेटिव्स ऑफ पार्टीशन फ्रॉम ट्रॉमा टू टेस्टिमनी। हमारा ये सौभाग्य है कि आज हमारे मुख्य अतिथि हैं हमारे अपने आदरणीय प्रोफेसर योगेश सिंह जी, कुलपति दिल्ली विश्वविद्यालय। उनके पहुंचने में थोड़ा सा विलंब है, तो जैसे ही वो पहुंचेंगे वो मंच पर आके आसीन हो जाएंगे। On the dais, we also have with us the distinguished presence of Professor Balram Pani, Dean of Colleges, who is a great inspiration thanks to his wide academic background, research accomplishments, and a commitment to fostering the next generation of academics. We welcome you, sir. We also have with us Professor Rajni Abhi, Director, South Campus. Experienced with a demonstrated history of working in academics, research, and governance, she inspires every woman to, if I must say in the vocabulary of Tagore, where the mind is without fear and the head is held high. We welcome you, ma'am. We also have with us this morning Professor Payal Mago, ma'am, Director, Campus of Open Learning. She has so many feathers to her cap that her dedication and commitment is awe-inspiring. As I know her, she unfolds the painful wraps of partition with so much emotion and sensitivity. We welcome you, ma'am. When it comes to managing the academic policies and the overall administration with fairness and accuracy, there can be only one name, that of Dr. Vikas Gupta, Registrar, Delhi University. He is not just the custodian of the records, but supports the institution and individuals through a variety of internal, national, and global challenges in pursuit of strategic goals. Our welcome to you, sir. साथ ही हमारे पास मंच पे उपस्थित हैं चेयरपर्सन, सेंटर फॉर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन स्टडीज़, प्रोफेसर रवि प्रकाश टेकचंदानी जी, और सेंटर के डायरेक्टर प्रोफेसर रविंद्र कुमार जी। हमारे साथ मंच पर आज एक बहुत ही विशेष अतिथि जुड़े हैं, सरदार त्रिलोचन सिंह जी, जो नेक्स्ट सेशन में हमारे कीनोट स्पीकर भी हैं। सरदार त्रिलोचन सिंह जी एक्स राज्यसभा एमपी हैं और साथ ही नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ के चेयरपर्सन भी रह चुके हैं। वी वेलकम यू, सर। मैं सरदार त्रिलोचन सिंह जी से आग्रह करूंगी कि वो अपने विभाजन के अनुभवों को हमारे साथ साझा करें। इन एब्सेंशिया प्रोफेसर योगेश चंद जी नहीं है, उनको प्रणाम करता हूँ। स्टेज पे यूनिवर्सिटी के सभी, मैं तो पानी जी को जानता हूँ क्योंकि वर्मा जी तो बाकी सभी बैठे हो, और जो बैठे हो मैं सबको प्रणाम करता हूँ। आज के दिन we are here today what for? To pay our homage to the unknown. About 8 lakh people who sacrificed their lives what for? Only that they loved India, they left their homeland. Today, we see every day uprooting a person from a juggi is the most difficult. Can you imagine? Our motherland is Pakistan. We are born there, our ancestors there. So we left that land what for? Love of our religion, that we were non-Muslims. Hindu and Sikh, no difference. So we means we, all those. I am Pakistan born, luckily living. So I saw my village burning, complete burning. How we were saved, it's a big story. But today, I want to
mention only few things. I think my main lecture will be later on. Since this today here gathering is all those who teach, who write syllabus, and who want the next generation to know about heritage. My only one question, I must say, we are grateful all those refugees, our families, to Prime Minister Modi, that after about 65 years of our coming, he thought of why not remember our ancestors. It's he who thought that we have also played a role. So I'm thankful to him and thankful to the Vice Chancellor Saab for organizing today's function. Now, partition is due to independence. You must first learn. Partition क्यों हुआ? India independent होने जा रहा था. Independence of India because of that partition. So this is the first, when you discuss partition, then why partition took place? Because the Britishers who were ruling, they decided to divide the country. Country on the basis of religion, two-nation theory. That Muslims go to Pakistan and non-Muslim to India. That was the... Now my question today, that we were getting independence from whom? I think this is the one question which is not yet been answered. Because the government of India decided that independence of India starts from 1857. So they decided that we were under foreign rule only for the British rule. They totally forgot that India became under foreign rule when? More than 800 years. And that period, when we were under many different names of Mughal, Sultanate, various rules, they thought they were Indians. I think this is my question to all of you. Okay, who were they? Who were ruling us? Were they not outsiders or invaders? So when we treat independence from British rule, it means that then the previous period was Indian period. They were part of us. So if they were part of us, then Shivaji Maratha was fighting against whom? Then Maharana Pratap was fighting against whom? Then Banda Bahadur was fighting against whom? It means that period of 600 years before British, we have ignored. I was member parliament. This government of India celebrated that 1857 anniversary in parliament in the central hall, like this central hall. So I was MP, then function started. The speaker, President of India, Prime Minister, Dr. Manmohan, everyone was there. As soon as the speaker announced that we are celebrating 1857, I got up. This is a rare occasion in the history of parliament. I just said, please don't distort history. If that is the period, then what was the earlier period? As I put the question. Speaker said, "Baith jo baat." I said, "Sir, don't do anything wrong in the house. We were slave before that. So we should not say on this day, and what about the other period?" I baith gaya, lekin I raised this question there also. So that is what I am raising here, because I have a Pandit Nehru's own writing. He says, the Mughal dynasty became firmly established as India's own. So Pandit Nehru owned Mughal dynasty and other as part of India. So this is, I have a document. So my submission today to all of you, whenever you discuss independence, please count that period also. Okay, what happened? In 1947, India became independent, and the entire Hindu community should realize
they also got independence after 800 years. This we forgot. I think this is the main, देखो, Guru Gobind Singh's 4 sons at the age of 7, 9, 11, 10 were butchered by the Mughal Empire. What for? Whom they were fighting for? Guru Tegh Bahadur here in Chandni Chowk, he laid his life head what for? Tilak Janju Rakha Praptaka. From whom? From the Mughal Empire. So my submission is, whenever you talk of independence, please count that period, not only the British period. That is my first submission. Secondly, partition is a very tragic. Today you are, abhi batti jalai. This is in memory of all those. Punjab was divided and Bengal was divided. Entire India was safe. Perhaps people in India are not aware what is partition or ye kisko kehte hain. Only now Delhi University has started. I am thankful to all of you because people should know. You see, Punjab was a Muslim majority state. When British decided that any state which is majority of Muslim will go to Pakistan, rest to India, that was the decision. So Punjab was majority Muslim, but since the Sikhs were also living in Punjab, the Sikhs in Punjab decided that we don't go with Pakistan. So that was a huge movement which you should all remember why this partition took place in this side. When decision was that whole Punjab go to Pakistan, why it was divided? It was divided because on 3rd March 1947, there was a union government. Khizr Ayad Khan was the chief minister. He resigned, and the Muslim League wanted to take over and become chief minister. If Muslim government has come in March 47, they would have passed a resolution that we go for Pakistan. So that was the moment, crucial moment. But they wanted some more MLAs for support. And there were 19 Sikh Akali MLAs. So they approached them. So this is a huge, I think, part of history which we should remember. All Sikh MLAs went to the assembly hall. They held a meeting presided by Sardar Swaran Singh, who was foreign minister. He was the leader of the Akali party. Mastara Singh was there. They decided that we don't support Muslim League. They cannot form the government. There was a huge halla gulla. The Muslim crowd was standing there. They wanted to, you can say anything could happen, but it was saved. But that decision that we don't go with them, Muslim government could not be formed on that day. And when they couldn't form the government, Lord Wavell told them, let there be now the president rule. So governor rule came, and how Punjab at that time was saved. So what happened? Then the Sikhs fought with it that we want division of Punjab. So on that account, the British government decided Punjab divided. अगर आप थोड़ा याद करो, अगर सारा पंजाब पाकिस्तान होता तो पाकिस्तान की बाउंड्री गुड़गांव होती. गुड़गांव वाज पार्ट ऑफ पंजाब. फरीदाबाद, रोहतक ये पंजाब का हिस्सा था. अगर ये डिवाइड उस वक्त ना होता तो होल पाकिस्तान वुड हैव बीन नियर दिल्ली. तो दिस इज बिकॉज ऑफ द अकाली पार्टी ए डिसीजन कि ब्रिटिश हैड टू यील्ड और ये डिवाइड हुआ. लेकिन दो बातें अब मैं आपको याद कराना चाहता हूँ कि ये जो पाकिस्तान में जुल्म हुआ, इसके 2 पार्ट्स हैं. एक है डायरेक्ट एक्शन, वो 8 मार्च 47 को शुरू हुआ. जो आपके कोई इंसेस्टल जिंदा हों वाकई उनको पूछना. पाकिस्तान में जो मुस्लिम लीग ने फ्राम 8 मार्च टू 15 मार्च 7 डेज रावलपिंडी डिवीजन पेशावर के इलाके में जितने हिंदू सिखों के गांव थे वो सारों उनको मार दिया. टोटल अटैक ऑन द पॉपुलेशन, रावलपिंडी डिवीजन और फ्रंटियर का इलाका. इसमें उन्होंने इतने जुल्म किए कि शायद किसी ने देखी हो, तमस फिल्म आई थी. पी शमसानी ने एक फिल्म लाई थी तमस. वो उसका एक किताब लिखी थी खुशवंत सिंह ने, ट्रेन टू पाकिस्तान.
वो सीन था उस इलाके का। एक आपने सुना होगा, एट दैट टाइम देर आर 2 विलेजेस इन पाकिस्तान, वहाँ लेडीज़ ने कुएं में छाल लगा दी, वरना वो अबडक्ट हो रही थी। 12 एक में 20 लेडीज ने जंप किया टू सेव देमसेल्फ, अपनी आनर के लिए। ये उस वक्त का सीन है। तो दैट पार्टीशन जो से पहले जो वाक़या है, दैट पॉपुलेशन शिफ्टेड फ्रॉम दैट मार्च टू पटियाला बिकॉज महाराजा पटियाला। तो इसलिए ये जो पार्टीशन से हम पंजाब से आए हैं, 2 हिस्से, दोज हु केम फ्रॉम रावलपिंडी पेशावर इन मार्च, लेकिन जो असल पार्टीशन है जिसको हम आप कहते हैं वो है 15 अगस्त। एक रेड क्लिफ अंग्रेज को डिप्यूट किया गया कि ही शुड ड्रा दी लाइन कि पंजाब विच गोज टू पाकिस्तान विच गोज टू इंडिया। ही अनाउंस दैट लाइन। देखो कमाल है, पार्टीशन 15 अगस्त की है और वो 15 को ही ऐलान करता है। इट मीन जो लोग पाकिस्तान में, नो बडी न्यू कि मेरा इलाका कहाँ जा रहा है। So they didn't give them time to decide. So 15 अगस्त की लाइन रेड क्लिफ की है। ये लाइन जो अब पाकिस्तान हमारी डिवाइडेड है, ये रेड क्लिफ अवार्ड है। उसकी वजह से जब ऐलान हुआ तो ये जो 4 ज़िले, आपको नाम नहीं होगा, लैलपुर, शेखुपुरा और मिंटगुमरी, ये 4 ज़िले पाकिस्तान में एग्रीकल्चर लैंड थे। तो ये सारा इलाका था सिखों का था। तो दे थॉट कि दे विल गो टू इंडिया बट दे वेंट टू पाकिस्तान। सो ये जो काफले थे उनके जो गांव वाले थे, दे केम इन कारवां, और वो 5-5 मील लंबा कारवां था जिस पे मुस्लिम अटैक करते थे और वो रास्ते में लड़ाइयाँ करते मरते आए। भाइयों ये रिकॉर्डेड है, 8 लाख हिंदू सिख डाइड वाइल क्रॉसिंग टू इंडिया। आज उनको याद करो, ये जो आज बैठे हो, प्लीज रिमेंबर वो 8 लाख का कसूर क्या था? व्हाट वाज देयर फॉल्ट? बिकॉज नेहरू जिन्ना एग्रीड फॉर पार्टीशन, इसलिए वो कुर्बान हो गए। कुर्बान हुए अपने धर्म के लिए, कुर्बान हो गए अपने वतन के लिए। तो ये मैं आज कहता हूँ, आज के दिन जब आप बैठे हो, वी पे आवर होमेज टू दोज 8 लाख, और इससे ज़्यादा अबाउट 50,000 गर्ल्स वर अबडक्टेड। इससे बड़ा दुनिया में कोई जुल्म नहीं कि हिंदू सिख गर्ल्स 50,000 वर अबडक्टेड। उसके बाद ये सर्च शुरू हुई, 9,000 वापस आई, बाकी पाकिस्तान में रह गई। ये उस वक़्त के गवर्नमेंट की अपनी फिगर्स हैं। और जितने लोग हम आए, 70 लाख मोर पीपल माइग्रेटेड टू दिस साइड। और ये जो इलाका पाकिस्तान से आया, ये रावलपिंडी लाहौर, ये ज़्यादा अमीर था। दे वर ऑल ट्रेडर्स। लाहौर वाज मोर ऑफ हिंदू एंड सिख्स दैन मुस्लिम। दे शिफ्टेड एंड केम हियर, एंड दिस साइड ऑफ पंजाब जो था, इसमें बैरन लैंड थी। ये बाखरा नहर बाद में आई। तो पीपल कमिंग फ्राम दैट, they couldn't get compensation which was required because here the land and houses were not that much. So they suffered more. एक पॉइंट कह के मैं बैठता हूँ, मैं लंबा न रहूँ कि बाकी नहीं बोलना होगा। The entire India at that time was sleeping. आज छोटी सी बात पे आप टैक्स लगाते हो, ये टैक्स लग गया जी, सड़क बन गई, ये आप, उस वक़्त कोई इंडिया में रिफ्यूजी टैक्स नहीं लगा। जितने हम लोग आए, वी केम आउट ऑफ एशेस। कोई किसी ने खैरात नहीं मांगी। नॉट ए सिंगल रिफ्यूजी फ्राम पंजाब कहीं सड़क पे मांगता हो। यहाँ लोगों ने सड़क पे फड़ियाँ लगा के, करोड़ों पति बैठ के छोटा छोटा काम करते थे। एवरी वन ऑफ देम राज करता आया। हमारे रिफ्यूजियों से 2 प्राइम मिनिस्टर बन गए, इंदिरा कुमार गजराल, मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह का गांव मेरे गांव के साथ था। 2 people फ्राम रिफ्यूजीज बिकम प्राइम मिनिस्टर। ये इंडिया की डेमोक्रेसी है, प्लस दी सी द करेज ऑफ द रिफ्यूजीज कि वहाँ से आके कहाँ तक राइज किया। तो ये मैं इतना ही कह के कि व्हेन यू टुडे रिमेंबर, प्लीज़ जनरेशन शुड नो कि इतना जुल्म वर्ल्ड की हिस्ट्री में। आज हम कहते हैं जी गाज़ा, आज हम कहते हैं यूक्रेन, पर नोबडी रिमेंबर कि इंडिया में क्या हुआ। और ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की फेलियर कि उनका राज था। दे शुड हैव प्रोवाइडेड
पर वो अंग्रेज़ अपनी क्योंकि भागने की कोशिश में थे, अपना सामान इकट्ठा कर रहे थे, दे डिडंट बॉदर। और जितनी आर्मी थी वो पहले पाकिस्तान चली गई थी, दैट आर्मी डिडंट हेल्प अस। तो इसलिए जो ये जुल्म हुआ, मोर डिटेल लेटर ऑन, उनको आज होमेज करें। और मैं इसलिए कि पहली बार यूनिवर्सिटी लेवल पे ऐसे फंक्शन हों, फॉर मी ए सर्वाइवर ऑफ दैट आई मस्ट से वीसी साहब, आप सबको जितने आए हो, प्लीज़, दिस इज़ ए रियल, यू आर डूइंग, आई थिंक, ए पैट्रियाटिक, इज़ ए होली जॉब टू रिमेंबर दोज हु डाइड फॉर यू। थैंक यू। I now invite Professor Ravindra Kumar, Director, Center for Independence and Partition Studies, to talk about the center and to give the sanctification of today's day. Please, sir. बहुत ही आदरणीय सरदार त्रिलोचन सिंह जी, एक्स member of parliament and former chairman National Commission for Minorities, Dean Colleges Professor Balram Pani ji, Director South Campus Professor Rajni Abbi ji, Director Camps of Open Learning Professor Payal Magu ji, Registrar Sir Dr. Vikas Gupta ji, Chairperson CIPS Professor Ravi Prakash Tek Chandani ji, CIPS के जॉइंट डायरेक्टर प्रोफेसर ज्योति त्रिहिन शर्मा जी, और मेरे सामने बैठे युग पुरुष पार्टीशन सर्वाइवर्स जिन्होंने यहाँ आकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। CIPS की गवर्निंग बॉडी के और सर्च कमेटी के मेंबर साहबान, चेयरपर्सन कल्चर काउंसिल श्री अनूप लाठर जी, डायरेक्टर स्पोर्ट्स संजय राय जी, रूपम मैडम, DSW साहब रंजन त्रिपाठी जी, ऑल डीन्स, डायरेक्टर्स, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स, फैकल्टी मेंबर्स, नॉन टीचिंग ऑफिशियल्स एंड स्टाफ एंड डियरेस्ट स्टूडेंट्स, आज की संगोष्ठी में आप सबका स्वागत है। इस गोष्ठी के विषय की बात मैं कविता से शुरू करनी चाहूँगा। हालांकि सरदार त्रिलोचन सिंह जी ने जो अपना इंट्रोडक्टरी एड्रेस है बखूबी से इस प्रोग्राम की रूपरेखा भूमिका आपके सामने रख दी है, पर एक भूमिका कवि भी रख रहा है। ये कवि है पाकिस्तान का इब्ने इंशा, उसकी कविता है हमारा देश। ये कविता डायलॉग फॉर्म में है, दो लोग बात कर रहे हैं। बात क्या कर रहे हैं? ईरान में कौन रहता है, पहला व्यक्ति पूछता है। दूसरा कहता है ईरान में ईरानी कौम रहती है। इंग्लिस्तान में कौन रहता है? इंग्लिस्तान में अंग्रेज़ कौम रहती है। फ्रांस में कौन रहता है? फ्रांस में फ्रांसीसी कौम रहती है। भाई यह कौन सा मुल्क है? यह पाकिस्तान है। इसमें फिर पाकिस्तानी कौम रहती होगी? नहीं, इसमें पाकिस्तानी कौम नहीं रहती। इसमें सिंधी कौम रहती है, इसमें पंजाबी कौम रहती है, इसमें बंगाली कौम रहती है, इसमें यह कौम रहती है, इसमें वह कौम रहती है। अरे भाई, पर लेकिन पंजाबी तो हिंदुस्तान में भी रहते हैं, सिंधी तो हिंदुस्तान में भी रहते हैं, और बंगाली तो हिंदुस्तान में भी रहते हैं। फिर ये अलग देश क्यों बनाया था? भाई साहब, गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए, फिर कभी नहीं बनाएंगे। लगभग 20 लाख लोगों की हत्या, 1 करोड़ 80 लाख लोगों की माइग्रेशन, 1 लाख औरतों की किडनैपिंग और दुष्कर्म के बाद भी अगर कोई ये कहे कि गलती हो गई, माफ़ कर दो, तो आप ही बताइए कि जवाब क्या होना चाहिए। सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि बंटवारे और आज़ादी के 75 साल तक आधिकारिक तौर पर अवाम को ये बताने की कोई कोशिश नहीं की गई कि इतनी बड़ी गलती की किसने, कौन कौन इसके जिम्मेवार थे और कौन कौन इसके जवाबदेह थे। और जो कुछ गलतियां होती हैं ना, वो माफ़ी के लायक नहीं होती। उन गलतियों को बार बार याद करवाया जाता है, याद किया जाता है, ये सीखने के लिए कि भविष्य में
ऐसी कोई गलती करने की सोच भी ना सके। अगर इंसान कोई गलती करता है ना, अगर छोटी सी भी गलती करता है तो भुगतना उसको भी पड़ता है। इसीलिए शायद किसी ने कहा है कि सिर्फ एक कदम उठा लिया था गलत, राह शौक में मंजिल तमाम उम्र मुझे ढूंढती रही। यहाँ तो जो गलती हुई है वो देश के लेवल पे हुई है, कौम के लेवल पे हुई है, मज़हब के लेवल पर की गई थी, और तभी तो उसके जो अंजाम हैं उनको आज तक भुगता जा रहा है। कभी कारगिल हो गया, कभी 65 हो गया, कभी 71 हो गया, कभी ऑपरेशन सिंदूर करना पड़ता है। ये गलतियों की वजह से ही करना पड़ता है। दुनिया में बहुत सारे विभाजन हुए। भारत पाकिस्तान का जो विभाजन था वो पहला विभाजन नहीं था। दुनिया में अनेक विभाजन हुए, अनेक पलायन हुए, पर ऐसे बंटवारे की और ऐसी माइग्रेशन की क्या कोई और मिसाल है कि जिनको बांटना है, जिनको पलायन करना है, ना तो उनको बांटने से पहले, ना बांटने और पलायन के दौरान पूछा गया कि आपकी इच्छा क्या है। किसी से कुछ नहीं पूछा गया कि आपकी इच्छा क्या है। और शायद यहाँ तक भी हुआ हो, पूछा भी गया हो दुनिया में किसी पलायन में या बंटवारे में, पर इतिहास में सिर्फ एक ही मिसाल भारत के बंटवारे की है, जहाँ लाखों लोगों की हत्या, करोड़ों के उजड़ने और धर्म परिवर्तन, किडनैपिंग और दुष्कर्म की घटनाओं के घट जाने के 75 साल बाद भी ना तो पीड़ितों की सार ली गई और ना ही कारणों की पड़ताल की गई। इस मायने में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2021 में जो विभाजन विभीषिका दिवस मनाने की शुरुआत करना, और दिल्ली विश्वविद्यालय के जो माननीय कुलपति हैं प्रोफेसर योगेश सिंह, उनके द्वारा विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन स्टडीज़ की स्थापना करना एक बेहद सराहनीय कदम है, बेहद महत्वपूर्ण कदम है। जब सेंटर की स्थापना की गई थी तो इसके कुछ उद्देश्य रखे गए थे। जो सबसे पहला उद्देश्य रखा गया था कि देश की आज़ादी और विभाजन से संबंधित उन व्यक्तियों और घटनाओं के अध्ययन को प्रोत्साहित करना जिन्हें इतिहासकारों ने या तो इग्नोर किया हो या भुला दिया हो या फिर लिखने के दौरान पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया हो। यह था पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य था कि विभाजन के पहले, विभाजन के समय और बाद में भी जो राजनीति हुई उसकी जांच पड़ताल करना और उसकी छानबीन करना। और तीसरा उद्देश्य था विभाजन पीड़ितों के दुखों, चुनौतियों और उनके पुनः स्थापित होने की कहानियों को देश और दुनिया के सामने लाने के लिए उनके इंटरव्यू करना और ओरल हिस्ट्री का एक ऐसा भंडार संग्रहित करना जिससे वो सच सामने आ सके जो आज तक विभाजन पीड़ितों के सिर्फ सीने में ही दफन है। जब माननीय कुलपति ने हमारी गवर्निंग बॉडी की पहली मीटिंग की थी तो पहली मीटिंग में हमें कहा गया कि हमने सभी उद्देश्य पूरे करने हैं, पर हमारे पास कुछ चीज़ों के लिए समय बहुत कम है, इसलिए सबसे पहले आप विभाजन पीड़ितों के पास जाइए, उनसे मिलिए, उनके इंटरव्यू कीजिए। तब हमें ये एहसास नहीं था कि हम केवल और केवल किसी सच की खोज में नहीं जा रहे, हम क्लासरूम में ज्ञान बांटने वाले लोग, उन युग पुरुषों के पास जा रहे हैं जो इतिहास के साक्षी बने हैं और जिन्होंने भूगोल किताबों में नहीं पढ़ा, जिन्होंने भूगोल अपने पैरों से पढ़ा है, उन लोगों के पास हम जा रहे हैं। उनके दुखों, उनके संघर्षों, पीड़ा और अनुभव के सामने जो हमारा किताबी ज्ञान हमेशा छोटा पड़ जाता। जब वे अपनी व्यथा बयान कर रहे होते तो हमें लगता जैसे कबीर की भाषा में हमें वो कह रहे हों, तू कहता कागद की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी। तो उनकी आंखन की देखी के सामने हमें कई बार कागद की लिखी छोटी लगने लगती। जैसे जैसे हम उनके इंटरव्यू करते गए तब तब हमें एहसास होता गया कि भारत विभाजन का जो रक्त रंजित इतिहास है वो किताबों में नहीं, वो विभाजन पीड़ितों के सीने में दफन है। तभी हमें साहिर लुधियानवी की याद आती जिसने कहा था, कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया, कौन रोता है किसी और की खातिर है दोस्त, सबको अपनी ही किसी बात पे रोना आया।
जब भी हम इंटरव्यू करने जाते हैं, पायल मग्गू मैडम आप भी विभाजन पीड़िता परिवार से हैं, रजनी अभी मैडम आप भी ये दर्द को समझते हैं, जब भी हम ये इंटरव्यू करने जाते हैं तो हमारा सामना कई बार एक लंबी चुप्पी से होता है और कई बार सूखी आंसुओं से टपकते हुए आंसू से सामना होता है हमारा, और एक लंबा पॉज हमें सोचने के लिए मजबूर कर देता है कि ज़ुबान इंसानों की होती है, दर्द की कोई ज़ुबान नहीं होती। दरअसल उनके शरीर, मन और आत्मा पर लगे हुए ज़ख्म बहुत गहरे हैं और ऐसी ही वेदना के बारे में किसी ने कहा है कि सिर्फ एक दो ज़ख्म नहीं, सारा बदन है छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कि कहाँ से उठे। पर इस सेंटर की स्थापना के माध्यम से माननीय कुलपति का ये प्रयत्न उन्हें इतना सुकून देता है कि कोई तो है जो हमारी व्यथा सुनने आया, कोई तो है जो हमारा हाल पूछने आया, कोई तो है जो हमारी कहानी दुनिया को सुनाएगा। सुकून का ये भाव हमने उनके चेहरे पर पड़ा है, हमने उनकी आंखों में देखा है। एक सुकून हमें और भी मिलता है सर, वो विकास सर, वो ये सुकून मिलता है कि हम केवल 9:30 से 5:30 तक नौकरी करने वाले लोग नहीं हैं। यहाँ ये सिर्फ हम ड्यूटी नहीं कर रहे पार्टीशन स्टडीज़ की, जब इंटरव्यू करते हैं तो हम तो एक मिशन पर हैं। किसी ईश्वरीय कृपा से ही ये सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। तो हमें लगता है कि हमने अपने जैसों से दोस्ती कर ली, हमने ज़िंदगी कर ली, पाँव छूकर बुज़ुर्गों के हमने पल भर में बंदगी कर ली। ये ऑनरेबल वाइस चांसलर सर, यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल्स की टीम, हमारे पहले जो चेयरपर्सन थे श्री प्रकाश सर, जो अब चेयरपर्सन हैं प्रोफेसर रवि प्रकाश टेकचंदानी, क्योंकि उनकी व्यक्तिगत व्यथा, उनका व्यक्तिगत दर्द भी बहुत बड़ा है। श्री अनूप लाठर सर, इनका ही मार्गदर्शन ही है और बुज़ुर्गों का आशीर्वाद ही है कि हमने लगभग 1 साल 7 महीने के समय में सेंटर का इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप किया है, 56 पार्टीशन सर्वाइवर का इंटरव्यू भी किया है और सेंटर की अपनी वेबसाइट भी बनाई है। यूट्यूब चैनल ना केवल बनाया है, उसके 1200 के लगभग सब्सक्राइबर हैं। सेंटर एक्सप्लेट फॉरम पर भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवा चुका है और सेंटर ने डीयू के डिफरेंट कॉलेजेस के साथ कोलैबोरेशन में सेमिनार किए हैं। श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज के साथ हमने सेमिनार किया मिलके विभाजन के विषय पर, भारती कॉलेज के साथ किया है और दयाल सिंह कॉलेज के साथ किया है। एक सेंटर का प्रोग्राम है विजिट टू द इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। उसके अंतर्गत हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के उन स्टूडेंट्स को राष्ट्रपति भवन के म्यूज़ियम में विज़िट करवाने के लिए लेकर गए जिनका एडमिशन डीयू के ऑर्फन कोटा कैटेगरी के अंतर्गत हुआ। उसमें प्रोफेसर रंजन त्रिपाठी का हमें बहुत सहयोग मिला, उनके हम आभारी हैं। और राष्ट्रपति महोदया से मिलने का जो स्टूडेंट का जो अनुभव था वो बेहद शानदार रहा। श्री अनूप लाठर सर हमारे साथ उन्होंने कंपनी की थी, हम उनके भी आभारी हैं। इसके बाद हमने एक लोगो डिज़ाइनिंग कंपटीशन करवाया और सेंटर के स्टूडेंट्स ने इस कंपटीशन के ज़रिए एक लोगो डिज़ाइन किया जो अभी आप बैनर पे देख रहे हैं। ये सेंटर का लोगो स्टूडेंट का डिज़ाइन किया हुआ है। ऐसे ही हमने एक वीडियोग्राफी कंपटीशन भी करवाया जिसमें स्टूडेंट ने पार्टीशन सर्वाइवर के इंटरव्यू रिकॉर्ड किए। आज उन विजेताओं को भी अगले सेशन में प्राइज़ दिए जाएंगे। अभी कुछ दिन पहले ही ऑनरेबल वाइस चांसलर के मार्गदर्शन में हमने एक एसे राइटिंग कंपटीशन करवाया है जिसका विषय था भारत के विभाजन का सच, बहुआयामी दृष्टिकोण। और आप हैरान होंगे, इस एसे राइटिंग कंपटीशन में 550 से भी ज़्यादा एंट्रीज हमारे पास आई हैं और एसे राइटिंग कंपटीशन के विजेताओं को भी आज यहाँ प्राइज़ दिए जाएंगे। सेंटर के माध्यम से यूनिवर्सिटी की एक बड़ी पहल, एक नया जेनेरिक इलेक्टिव कोर्स डिज़ाइन किया गया है और इस कोर्स का टाइटल है सिख मार्टिडम इन इंडियन हिस्ट्री।
और भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी में सिख शहादत पर यह अपनी तरह का पहला कोर्स है। इसके लिए भी ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो हैं वो शुरू होने हैं। सेंटर ने इस लंबे अरसे में जो काम किया है उसकी एक एनुअल रिपोर्ट भी बनाई है, जो आज यहाँ ऑनरेबल वाइस चांसलर सर उस रिपोर्ट को रिलीज करेंगे। दरअसल जो भी काम हुआ है वह केवल और केवल CIPS की टीम की मेहनत का नतीजा नहीं है। ये डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर, चेयरपर्सन या हमारी फंक्शनल कमेटी या हमारी वॉलंटियर की जो इसमें मेहनत है वो तो इसमें है ही है, पर ये किस चीज़ का नतीजा है? ये नतीजा है एक शुभ भावना का और एक चाहत का नतीजा है। ये चाहत जो माननीय प्रधानमंत्री के एक ट्वीट से शुरू हुई थी। 2021 में माननीय प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट किया और वो ट्वीट ही बाद में विभाजन विभीषिका दिवस के मनाने का कारण बना। और चाहत ऑनरेबल वाइस चांसलर की थी कि एक सेंटर ऐसा बने जिसमें इंडिपेंडेंस पे और विभाजन पे रिसर्च हो। उस चाहत के कारण ही इतना काम हो सका और ये चाहत ही है जो सारा काम करवाती है। जो विभाजन भी हुआ वो कुछ लोगों की चाहत के कारण ही हुआ था। सत्ता पे काबिज और सत्ता की चाहत रखने वाले लोगों ने जो चाहा वही हुआ। किसी ने ठीक ही कहा है कि हमने चाहा ही नहीं, हालात बदल सकते थे, उनके आंसू अपनी आंखों से निकल सकते थे, हम तो ठहरे रहे झील के पानी की तरह, दरिया बनते तो बड़ी दूर निकल सकते थे। अंत में मैं सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री की उस शुभ भावना का स्वागत करता हूं जिसने विभाजन विभीषिका दिवस की शुरुआत की। साथ ही माननीय कुलपति की उस भावना का स्वागत करता हूं जिसने सेंटर फॉर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन स्टडीज़ जैसा सेंटर स्थापित किया। आप सभी का जो इतनी बड़ी गिनती में आप आए हैं कि हमारे पास कुर्सियां भी कम पड़ गई हैं, आप सभी का स्वागत तो है ही जो आप इन ऐतिहासिक पलों के साक्षी बन रहे हैं। और सबसे बढ़कर मेरे सामने बैठे इन युग पुरुषों का स्वागत है जो ज्ञान के मंदिर में तशरीफ़ लाए हैं, जिससे हमारे विश्वविद्यालय की शोभा और बढ़ गई है। सर, शायद आपके लिए ही किसी ने कहा है कि कहीं चंदन महकता है, कहीं केसर महकता है, ये खुशबू है बुज़ुर्गों की जो मेरा घर महकता है। वो अपनी झुर्रियों वाली हथेली में दुआ भरकर जो छू देते हैं मेरा सिर, तो मेरा सर महकता है। सड़क पर ठोकरें दुनिया की वो खाता रहा बरसों, उसे मंदिर में जब रखा वही पत्थर महकता है, वही पत्थर महकता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की संगोष्ठी में आप सबका पुनः स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं cordially invite Professor Ravi Prakash Tekchandani ji, Chairperson CIPS, for his address. बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति जी। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस यह आयोजन नहीं है, यह उत्सव नहीं है। यह वो स्मरण है जो आपको पीड़ा देता है, जो आपको दुख देता है, आपके हृदय को चीरता है, आपको दृष्टि देता है, आपको ज्ञान देता है और भविष्य में ऐसा न करने का संदेश भी देता है। मंच पे उपस्थित श्रद्धेय सरदार त्रिलोचन सिंह जी, जिनके कई सारे प्रश्नों को अभी हमने सुना और ये उन्होंने इस प्रांगण में उठा करके उचित ही किया। शिक्षा के इस मंदिर में अगर ऐसे प्रश्न उठेंगे तो उस पर शोध होगा, उसके उत्तर खोजे जाएंगे और जब उत्तर खोजे जाएंगे तो हमारे कुलपति महोदय का आभार प्रकट करना होगा कि उन्होंने सेंटर फॉर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन स्टडीज़ की स्थापना की। मंच पर उपस्थित प्रोफेसर बलराम पाणी जी, डीन ऑफ कॉलेजेस, प्रोफेसर रजनी अब्बी जी, डायरेक्टर साउथ कैंपस, प्रोफेसर पायल मागो जी, डायरेक्टर कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग, डॉक्टर विकास गुप्ता जी, रजिस्ट्रार, प्रोफेसर रविंद्र कुमार जी, डायरेक्टर CIPS, ज्योति जी, मेंबर्स ऑफ गवर्निंग बॉडी रिसर्च कमेटी ऑफ द CIPS, इस सभागार में उपस्थित आप सभी
भारत भक्त, भारत प्रेमी बंधु भगिनी, आज का यह जो अवसर है, यह जो स्मरण भाव है, इसको यदि देखा जाए तो संज्ञा अर्थ में भी और विशेषण अर्थ में भी, दोनों के अर्थ में इसको रेखांकित करना चाहिए, इसका स्मरण करना चाहिए। प्रश्न जब ये उत्पन्न होता है कि इस विभाजन विभीषिका दिवस के स्मरण की आवश्यकता क्यों है, तो मुझ जैसे उस बालक को बचपन में जाना पड़ता है जब मेरी माँ जो सिंध से माइग्रेट करके आती हैं, प्रव्रजन करके आती हैं, और उनको शरणार्थी कहा जाता है। आदरणीय त्रिलोचन सिंह जी की तरह मैं भी ये प्रश्न आप लोगों के सम्मुख रखता हूँ, क्या शब्दकोश ने शरणार्थी शब्द की परिभाषा बदल दी है क्या? अगर शब्दकोश ने शरणार्थी शब्द की परिभाषा नहीं बदली है तो क्या हम लोगों को ये फोर्स किया गया है कि आप शरणार्थी शब्द के अर्थ को गलत अर्थों में समझें क्या? और अगर हमने उसे गलत अर्थों में गत 77-78 वर्षों में समझा है तो क्या ये एकेडमिक वर्ल्ड के लोगों को सुधारने का आज ये अवसर नहीं मिल रहा है क्या? और यह अवसर नहीं अगर मिल रहा है तो क्या इस प्रकार के शरण देने वाले, इस प्रकार के शरणार्थी जैसे शब्दों को जो पुनः 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 विभक्त करता है, बांटता है, आप जब हमें कहते हैं कि ये तो रिफ्यूजी कैंप में रहने वाले लोग हैं, हमारे पड़ोस में रिफ्यूजी परिवार रहता है, आप हमें भारत मानने के लिए भी स्वयं चाहे अनचाहे हमें आप अपने से दूर करते हैं। जब दूर करते हैं तो बांटते हैं यानी विभक्त करते हैं। विभाजन को नित्य प्रति हमें जीवित रहने के लिए विवश करते हैं आप लोग। आप स्वयं से पूछ करके देखिए कि या ये शब्द के व्योमा में, शब्द के जाल में आप स्वयं फंस नहीं रहे हैं? अगर शब्द को आप स्वयं एज इट इज स्वीकार कर रहे हैं तो आपकी मेधा कहां जली जाती है जब आप शब्द का प्रयोग लगातार करते हैं? आप हमारी आंखों में झांक करके तो देखिए। कहते हो क्या हुआ जो सिंध छोड़ आए? यदि उससे पहले हम 2 शब्द और ले लें, करते हो याद जश्न आजादी को तुम साल दर साल, 47 की काली रात भी याद करके तो देखो, और चीख, खून, बलात्कार, बिछो खुद ब खुद दिख जाएगा। किसी विस्थापित की आंख में झांक करके तो देखो। यह कचोटता है यह शब्द हमें। हम विस्थापित हैं, अपने ही भूभाग से विस्थापित हैं, उस अखंड भाव से विस्थापित हैं, उस टुकड़े भाव में रह रहे हैं और अखंड होने का स्वप्न पालते हैं। इसलिए आज के इस दिवस को आयोजित करते हैं, इसका हम स्मरण करते हैं, प्रणाम करते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को। कहते हो क्या हुआ जो सिंध छोड़ आए? हमारी मां से कुछ पत्रकारों ने पूछा था, आप इतने सशक्त हो गए हैं, धन पुरुष हो गए हैं, इतना धन कमा लिया है, अभी भी आप लोग सिंध को याद करते हैं, उस विभाजन को याद करते हैं। कहते हो क्या हुआ जो सिंध छोड़ आए? अपने मोहल्ले को जरा छोड़ करके तो देखो और बिछोह के दर्द का एहसास अभी हो जाएगा। अपनी मां से 2 पल जुदा होकर के तो देखो। पढ़ते हो हर रोज सिंध को अखबारों के अक्षरों में, कभी कराची और कभी लाहौर जाकर घूम करके तो देखो और विभाजन के खंडहर साफ साफ दिख जाएंगे। आजादी की नींव में लगा पत्थर उठा करके तो देखो। ये भाव, ये हमारा अकेले का भाव नहीं है। यह जो सेंटर है वो पंजाब, सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पोस्ट, बलोचिस्तान और ढाका, बंगाल की तरफ के भी उन विस्थापितों की पीड़ा को संकलित करने के भाव से एकत्र किया गया है। आप सब शोधार्थी हैं, आप इतिहास विज्ञ हैं, आप ज्ञाता हैं। आप स्वयं से प्रश्न पूछ करके दीजिए, जो पन्ने यहां पर उद्धृत कर दिए गए हैं, क्या उसके पीछे की भावना हम पढ़ पा रहे हैं?
फिर उसी शरणार्थी जैसे शब्द को पकड़ करके, सुन करके उसको प्रवाह में बहते हुए तो नहीं जा रहे हैं। प्रश्न पैदा करिए। आदरणीय त्रिलोचन सिंह जी ने प्रश्न पैदा किया, उसका उत्तर हम खोजेंगे, लेकिन मैं अपनी छोटी बुद्धि से एक उत्तर देने का प्रयास कर रहा हूं कि अंग्रेजों ने कभी भी भारत को अपना नहीं बनाया, वो असिमिलेट होते हुए नहीं दिखे। अन्य लोगों ने यहां पर रहे, शक, हूण, कुषाण, मुगल, कितने लोग आए, वो भारत की भूमि में समा गए, रम गए, रह गए। उसकी अलग दृष्टि से भावना हो सकती है, चर्चा हो सकती है। ब्रिटिशर्स ने कभी, ये सिर्फ शोषक समाज था, उसने शोषण किया, यहाँ की भूमि को, यहाँ की संपदा को, यहाँ की संस्कृति को नित्य प्रति तोड़ा, पल पल तोड़ा। आज भी वो जो साम्राज्यवादी उनका भाव है, वो आज भी वही, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, इनको तोड़ते रहो। यदि भारत श्रेष्ठ हो गया, भारत एक हो गया, तो ये अखिल विश्व पर छा जाएगा। हमारी अपनी सीमाएं छोटी हो जाएंगी, सीमाएं चिंतन की सीमाएं, उनके सांस्कृतिक कर्मों की सीमाएं, उनके लिए यह बहुत बड़ा प्रश्न है। तो त्रिलोचन सिंह जी के उस उत्तर की तरफ एक कदम बढ़ाते हुए मैं कहता हूं, उन्होंने अपना नहीं माना, ब्रिटिशर्स ने सदैव इसको भोगा है, इसको भोग भूमि माना है, इसको शोषण किया है। इसलिए हम जब स्वतंत्र कहते हैं तो हम उनके शोषण से स्वतंत्र हुए, उनके उस भोगवाते विचार से स्वतंत्र हुए। हमने उनको निकाल करके बाहर फेंकने के मन से इस स्वतंत्रता के भाव को अपने साथ जोड़ा। अनगिनत अज्ञात लोगों ने अपनी आहुति दे दी। हम खान अब्दुल गफ्फार खान को याद कर पाते हैं क्या? हम उनके पुत्र वली खान को याद कर पाते हैं क्या? बलूचिस्तान से कितने ऐसे देश प्रेमियों के नाम जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी, आपको कितने लोगों का नाम पता है? आपने सर बिल्कुल ठीक कहा कि गुड़गांव तक पंजाब होने के नाते ये पाकिस्तान का केंद्र होता। मैं थोड़ा सा इतर दूसरी सूचना आपको देता हूं। 1947 का विभाजन हो रहा है, और सच कहा उन्होंने कि 1947 के 15 अगस्त को ये रेड क्लिफ की सूचना आ रही है। पता नहीं है, 2 दिन तक पता नहीं है कि किधर सीमा कब जा रही है। लेकिन अगर पता नहीं है तो जब वो अपनी डायरी में माउंटबेटन लिखता है और जब वो अपने आकाओं से मिलता है, आका उसको आशीर्वाद देते हैं, जाओ और भारत को छोटा कर दो, वो अपनी डायरी में लिखता है। ये कहाँ से आ जाती है बात? सिर्फ जिन्ना को एक सिपाही के रूप में, एक सूत्र के रूप में, एक अगर मैं बहुत सहज भाव से कहूं तो एक प्यादे के रूप में इस्तेमाल कर लिया जाता है। उसको इतना तेज कर दिया जाता है, उसके मुख से वो आग के गोले बरसाए जाते हैं और वो पूरे भारत में छाता है। लेकिन दृष्टि कहाँ है, उसकी कठपुतली की वो डोर कहाँ पर है, इसको हमें समझने की जरूरत है। और जब हम इसको समझेंगे तो हमको ये दृष्टि समझ में आएगी कि विभाजन क्यों हुआ और उसकी भूमिका लाहौर के मुस्लिम लीग के 1940 के प्रस्ताव से नहीं आती है। आप क्षमा करें मुझे, ये पन्नों पे लिख जरूर दिया जाता है 1940 का वो इतिहास, वो तिथि, लेकिन 1857 में आपको जाना पड़ेगा। कौन सा ऐसा ब्रिटिश शासक है जो प्रसन्न हो जाता है कि नहीं नहीं हिंदू मुस्लिम मिल करके लड़े हैं? वो प्रसन्न होगा क्या? प्रश्न करके देखिए, क्यों प्रसन्न होगा वो? उसके बाद 1905 का बंगाल का बंटवारा आता है, उसको चोट पहुंचती है जो वो बंटवारे में सफल नहीं हो पाता है। उसके बाद वो 1947 तक की विविध घटनाएं करता है, गोलमेज में जाता है, फेल करवाता है। अर्थात हिंदू को मुस्लिम से, मुस्लिम को हिंदू से लड़वाने का कोई ऐसा कार्य नहीं है जिसने उसने उसको रोका ना हो और उसको रोका हो। इतिहास के साथ साथ हमें संवेदनाएं भी पढ़नी होंगी। हम भारत के लोगों को प्रश्न करना होगा, सचेत होना होगा। और सचेत होने के लिए मैं आप लोगों का आह्वान करता हूं, आप लोगों से प्रार्थना करता हूं कि किप्स के साथ जुड़िए, सेंटर फॉर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन स्टडीज के साथ जुड़िए। जब आप जुड़ेंगे तो जोड़ेंगे, जब आप जुड़ेंगे ही नहीं तो जोड़ेंगे कैसे आप? इसलिए इस संस्थान के साथ आप लोगों का जुड़ना, आपकी दृष्टि बलवती होगी, हमारी कुछ हम सीख पैदा होगी और इस विश्वविद्यालय को यह
प्रतिसाद मिलेगा कि अखिल भारत में यह एक ऐसा विश्वविद्यालय है, यह ऐसा यशस्वी विश्वविद्यालय है जो इस प्रकार के शोध कार्य कराता है। मैं उस बात को जहां छोड़ दिया था फिर से कनेक्ट करता हूं कि गुड़गांव तक पंजाब आ सका तो सिंध की बात आप लोगों को बताता हूं। यह नई सूचना हो सकती है आप लोगों के लिए। थरपारकर एक जगह है, बॉर्डर पर है, आप लोगों ने नाम सुना है। थरपारकर हिंदू बहुल क्षेत्र होता है और उसके बगल में सांगड़ एक डिस्ट्रिक्ट है। सांगड़ डिस्ट्रिक्ट मुस्लिम बहुल क्षेत्र होता है। अब ये हिंदू मुस्लिम द्विराष्ट्र का जो कॉन्सेप्ट है, ये भारत का कॉन्सेप्ट है क्या? आप सभी शोधार्थी हैं, ये यूरोपियन कॉन्सेप्ट है। हम उनके कॉन्सेप्ट के दिए गए चक्र में हम फंसते रहते हैं, उस पर अध्ययन करते हैं। हमारे अपने कॉन्सेप्ट को क्या वो पढ़ते हैं क्या कभी? हम उनके इज्म्स को पढ़ते हैं, हम उनके पोस्ट मॉडर्न मॉडर्न अप्रोच को पढ़ते हैं, स्ट्रक्चरलिज्म को पढ़ते हैं। क्या हमारे दिए गए भाव को वो पढ़ते हैं क्या? तो क्या ये अभी भी वो गुलामी की मानसिकता से हम आगे नहीं जा रहे हैं क्या? इसको छोड़ने की जरूरत है, इसलिए प्रश्न करने की जरूरत है। वो सांगड़ डिस्ट्रिक्ट मुस्लिम बहुल डिस्ट्रिक्ट है। जब उनको पता चल जाता है कि ये यहां से बंटवारा हो चुका होता है, हो सकता है, तो सांगड़ को थरपारकर से जोड़ देते हैं। हिंदू बहुलता मुस्लिम बहुलता में बदल जाती है और सहज भाव से कह देते हैं कि नहीं नहीं, अब ये भारत में नहीं आ सकता। पंजाब के 2 टुकड़े होते हैं, बंगाल के 2 टुकड़े होते हैं, सिंध के क्यों नहीं हो सकते? वो भी तो बॉर्डर क्षेत्र था। वो पूरा का पूरा पाकिस्तान में नए देश में क्यों समाहित हो गया? हमारी अस्मिता जो हिंगलाज देवी है, वो वहां पर जो शक्तिपीठ है, वो वहां पर विराजित है। ऐसे प्रश्नों के साथ आप लोगों को स्वयं जागृत करना होगा और इस किप्स का अर्थ ही यही है, जागरण करना। इस कार्यक्रम का अर्थ ही यही है, आपको जागृत करना। अगर पंजाब के गुड़गांव तक के भाव को अगर पाकिस्तान यहां तक होता तो आदरणीय त्रिलोचन सिंह जी, विनम्र भाव से कहता हूं, सिंधु नदी तक भी भारत की भूमि होती। उस भूमि तक वो टच कर रहा होता अगर वो सांगड़ डिस्ट्रिक्ट के इस कॉन्स्पिरेसी में न जा चुका होता। के.आर. मलकानी ने पुस्तक लिखी है द सिंध स्टोरी। उनके बड़े भाई थे एन.आर. मलकानी, जो विभाजन से पहले कृपलानी जी के साथ भारत में आ गए थे। और उन लोगों ने जब नेहरू जी से मिले, एक प्रश्न खड़ा करता हूं आप लोगों के पास, तो त्रिलोचन सिंह जी आपके साथ चाय पीते हुए इससे जरूर पूछना चाहूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आपने उनके साथ पार्लियामेंट का वो स्थान शेयर किया होगा। आचार्य कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, देश स्वतंत्र हो रहा है और देश बट रहा है। आचार्य कृपलानी का बड़ा नाम है। एक तरफ नेहरू हैं, इतने वर्षों तक वो महामंत्री हैं कांग्रेस के, अध्यक्ष हैं उस समय जब देश स्वतंत्र हो रहा है, देश बट रहा है और उनका क्षेत्र सिंध उनके हाथ से जा रहा है पूरा पूरा। क्या चर्चा नहीं हुई होगी उनकी? क्या उन्होंने नेहरू से बात नहीं किया होगा? लेकिन वो क्या बात हुई, कहां दब गई, क्यों दबा दी गई, पन्ने वो कहां पर है, उस पर मिट्टी डाल दी गई, जानबूझ करके डाल दी गई। क्यों? क्योंकि उनके भावों को यह प्रश्न का उत्तर सूट नहीं करता है। देशभक्ति से आगे उनकी कुछ और भक्तियां हैं। एक सिंधी के कवि हुए हैं, उसकी एक 3 लाइन आप सुनेंगे ना, आप लोगों को देखेंगे कि वो किस प्रकार रिफ्यूजी कैंप में रहता हुआ कहता। उसका हिंदी एक शाब्दिक अनुवाद किया अभी बैठे बैठे मैंने। पोहू एक कैरेक्टर है, पोष जैसे होता है ना, पोष माह फागुन नाम है, ये चरित्र है। कोस रही है पोहू की मां, कंधा टूटे कांग्रेसियों का, किया है हमसे अन्याय, कपड़े नदी पर धो रही है, अगवानों को कोस रही है, मुंह फुलाकर कपड़े फेंकती, तीखा उसका ताव, कोस रही है पोहू की मां। सहज शब्द है, सहज, कोई विशेष भाव नहीं है। लेकिन वो क्यों कोस रही है? उठाते हो बेजा सवाल, राष्ट्रगान से सिंध निकाल दो। कुछ लोग उठा देते हैं, उठाया था पीछे, सिंध राष्ट्रगान में है, ये हमारे अभिमान की बात है और ये रहेगा, ये भारत के अभिमान की बात है। सिंध के और हिंद के बिना आप कल्पना कर सकते हैं क्या? क्या आप लोगों ने उठाते हो बेजा सवाल, राष्ट्रगान से सिंध निकाल दो, नहीं मिलेगा सिंधियों सा बलिदान, खोज करके तो देखो, और सिंधियों के भी देशभक्ति का अनुभव हो जाएगा।
किसी सिंधन के गर्भ से जन्म लेकर के तो देखो। मित्रों, यह जो सेंटर है ये आप लोगों से बहुत अपेक्षा कर रहा है, आप लोगों से जुड़ना चाहता है, आप लोग इसे अपना माने, अपने घर की तरह माने, आए इस सेंटर को इतना रिच कर दें। और एक बात अंत में कहते हुए मैं समाप्त करूंगा, हम उन भुक्त भोगियों का स्मरण करें, लेकिन साथ साथ में क्या कहीं पर कुछ ऐसा रेखांकन है कि उन भक्त भोगियों को जिन राष्ट्रवादियों ने सहयोग किया, जिन स्वयंसेवकों ने उनका सहयोग किया, उनकी कहीं पर श्रृंखला है क्या? उनका कहीं पर नामो निशान है क्या? नहीं है तो क्या नहीं होना चाहिए क्या? भुक्त भोगी अगर वो हमारे युग पुरुष यहाँ पर आए हैं तो उनको भी आना चाहिए, जिन्होंने इस प्रकार के लोगों के स्थान देने के लिए, उनका सम्मान करने के लिए उनको अवसर दिया, तो क्या उन लोगों की भी लिस्टिंग नहीं हो सकती है क्या? इसलिए अंत में 2-3 पुस्तकें बताता हूं, क्योंकि आपकी दृष्टि में वो प्रश्न भी पैदा होगा, वो उत्तर का भाव भी मिलेगा। इसलिए उन पुस्तकों को पढ़िए जो एक प्रचलित भाव से लेकर के अलग दिशा में आपको लेके जाएंगे। और वो पुस्तक है ज्योति जला निज प्राण की, सुरुचि प्रकाशन में उपलब्ध है। और देश बट गया, ये शेषाद्री जी की पुस्तक है, ये दूसरी पुस्तक है। राम माधव जी की अभी पुस्तक आई है पार्टीशन्ड फ्रीडम, उसको पढ़िए आप लोग। इस प्रकार की जब पुस्तकों का आप पाठ करेंगे तो अंबेडकर की पुस्तक को पढ़ना मत भूलिएगा, डॉक्टर साहब की पुस्तक को। उन्होंने पाकिस्तान या भारत का विभाजन, इस प्रकार के पुस्तकों को पढ़िए। और एक पुस्तक का और चलते चलते नाम ले लेता हूं, विभाजन अस्वीकार, महेश चंद्र शर्मा जी की पुस्तक है। आप यूरोपियन राइटर्स के, ब्रिटिश राइटर्स के, उनकी पुस्तकों को पढ़िए, लेकिन इनके इन भावों को पढ़िए। स्वयं प्रश्न पैदा होंगे, स्वयं स्मरण का भाव बढ़ेगा। और हम यह दिवस इसलिए मनाते हैं कि हम स्मरण करें, दृष्टि प्राप्त करें, दिशा प्राप्त करें। और सिर्फ नुकसान भौगोलिक नहीं हुआ है। हम आज भारत में अपनी कहते हैं कि भाषा ही हमारी संस्कृति है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहते हैं ना, पश्तो कहाँ चली गई? हमारे हाथ से बह गई। बलोची कहाँ चली गई? हमारे हाथ से बह गई। वो हमारी ताकत नहीं हो सकती थी क्या? भाषाएं ताकत होती है, संस्कृति ताकत होती है, सनातन हमारे जो स्थान है वो ताकतवर होते हैं। सिर्फ भौगोलिक विभाजन नहीं हुआ है, इन्होंने हमें पल पल तोड़ा है और हम पल पल जुड़ेंगे। इस भाव के साथ आज इतना ही, फिर कभी। धन्यवाद। So now we can request Dr. Balram Pani ji to kindly address the gathering. जी सर, आइए सर। सबको नमस्कार, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। ऑन द डायस ऑनरेबल सरदार त्रिलोचन सिंह जी, प्रोफेसर रजनी अब्बी जी, साउथ कैंपस डायरेक्टर, प्रोफेसर पायल मागू जी, डॉक्टर विकास गुप्ता जी, प्रोफेसर रवि टेकचंदानी जी, प्रोफेसर रविंद्र कुमार जी, श्री अनूप लाठर जी, ऑनरेबल partition survivors ji, and all the professors, deans, principals, and my dear colleagues and student friends. And right now, this is the narratives of partition from trauma to testimony. Means whenever I will talk about, means much, you have listened many things about the partitions, but the partition of what? Means whenever we are talking about partition of what? It is not the partition of any property. It is the partition of our motherland. It is the partition of our civilization. It is the partition of our culture, tradition, everything means that has been partitioned. So that is the very painful. Means whenever they will talk about the partition of your own motherland and your culture, your civilization, then it is very much painful. So we will have to read it again and again, and we are doing everything. Means right now we are doing the seminars on diet, workshops on diet, because you will have to take some lessons from these seminars
so no further partitions should be taken place. The partitions means in general, in normal way, whenever we will talk about the partitions, the properties, it will not hurt you. But whenever the partition of your motherland, then definitely it will hurt you. Because we are patriots. We will never share anything. And right now, today itself, we can promise ourselves that we will not allow in any cost of our motherland further. So this is the beauty of these seminars and the workshops. And as it is said, means when the partitions has been, means there is the historical facts, that is the 1930, the Muslim League, they have raised the question about the partition of India. And as Professor Ravi Tekshandani has said that in 1940, that the Lahore resolution about the partition of India, but that resolution, that is the Lahore resolution, subsequently it is known as the Pakistan resolution. Because they coined all these things and they have started gossiping themselves and they planned in that way, means how to achieve all these things. That is the partition there, means that they really their plan to how to get all these things. And in 1942, then whenever there is the Quit India movement, they did not participate. So they said that, okay, we should take our share, otherwise we will not participate. Then in 1945, Clement Attlee, when he became the Prime Minister of British, then he told that, okay, now we will allow India to become independent. Then immediately, it is the Muhammad Ali Jinnah, he said, right now we should come into the direct action. So that is the date, it is the 16th August, 1946. On that day, he declared that is the direct action. On the same day, the riots, the communal violence taken place in West Bengal. Right now, it is the Calcutta. That is the 16th August 1946. It was also known as the Calcutta killing. Calcutta killing means, from that day, the communal violence and the stakes for any share of that states, it is rising. Because they said that, okay, means the majority, means wherever there is the Muslim majority states, we should get it all these states. Besides that one, we should also get something wherever there is the Hindu majority. So they will go to both the share. Means that is the states, wherever the Muslims are majority, they will get in total 100%, and wherever the Hindus are in majority, they will get some share, means that is some facilities. Means that type. And whenever there is the agreement about the independence, here right now the bargaining started. And Muhammad Ali Jinnah started that, okay, no, we will not allow for the agreement. And means whenever, if there is any partition of your motherland and there right now it is the bargaining, if we will not get our share, then we will not allow you to become independence. So these are the two things. First, I tell that the partition of your motherland, and for that you are bargaining something. So this is not our culture. If you want to say something, okay, it is fine. But here the bargaining, it is there. And they bargain that in such a manner that, okay, total northwestern sides and the eastern sides, they have taken as the East Pakistan, and that is the Pakistan. Means these are the things. And it is the Clement Attlee. From 1945, whenever he declared all these things, at least, whenever in 1947 we got the independence, but at least 2 years, they could have planned it in a better way. If there will be any partition, they could have planned it in a better way.
but they do it in a very hastily, and at the last moment, they say that within 1 month, the partition means the partition should be given. Within 1 month, it is very short period, and even if on the 15th August it was declared that India independence was declared, but still then the demarcation of the clear demarcation of our boundaries is not clear. It was cleared on 17th August. So by that time, these 2 days means when they said that okay, it is the independent, and right now the both sides, at the border area peoples, they come together on the border line. When the Red Cliffs line has been declared on 17th August, means that is the 15th August we got it, and on the 17th August we got that line. So immediately the people are on the wrong side. Means those people, they are saying that okay, this will be on the Indian side and this will be on the Pakistan side, but they found immediately they are on the wrong side. Immediately chaos was happened, and here the massacre and bloodshed happened. These are the main things. Means you will have to, if there is any partition, okay, by any cost, though we are not agreed, through the bargaining we have agreed, but still then you could have do it in a better way, in a planned way. But it is very shortly, and your boundary demarcation, which side is the Pakistan, which side is the India, you have not cleared. So that is, you have cleared in between. So that Red Cliff line, it passed through the mid of the villages. You just see one village, one part of that village it is in the Pakistan, part of the village it is in the India. So here is the problems. And right now, whatever the testimony, whatever the historian had said, but there is a huge gap. Whatever the people like Sardar Tilochanji had said, means these are the oral testimony and the historical testimony. There is a huge gap. But right now, they have done the right thing. Professor Ravindra Kumarji, Professor Ravi Tekchandani and their team, they are doing very hard work to get the oral testimony, and this testimony will be documented, and these are the first-hand information. You are directly getting the testimony from the survivors itself. And the survivors are before us, and they had said that they have already interviewed around 60 survivors. So these are the great things. Whenever it will be documented, just it is the immediately you are getting that is the first-hand information. There's the seeing is believing. You are saying seeing is the believing. So that seeing is the believing. That the oral testimony, whatever our survivors are giving, that will be very, very authentic, and you will have to at least believe them that they, whatever they are experienced and what has happened to them, they are just narrating. So these are the things, these documents should be documented very well. And you have told me to say something, so okay, so whatever knowledge I have told you. And again I say, Namaskar, thank you. Thank you so much, sir, for your insights on the narratives of partition. May I kindly call upon Dr. Varun Gulati, Member Governing Body CIPS, for the vote of thanks. माननीय अतिथिगण और सामने बैठी वो पीढ़ी जिन्होंने विभाजन की वो विभीषिका का दर्द महसूस किया, और पीछे वो पीढ़ी जिनके शरीर में आज भी वो रक्त दौड़ रहा है। आज हम इस केंद्र के माध्यम से आयोजित जो ये राष्ट्रीय संगोष्ठी है, विभाजन का वृतांत आघात से साक्ष्य तक, इसमें एकत्र हुए थे। और मेरे जिम्मे यहाँ के आयोजकों ने, चूँकि मैं इसके साथ जुड़ा हूँ, इसलिए धन्यवाद प्रस्ताव लगाया। पूर्व की बातों में ये सब आया, क्योंकि आप सबका धन्यवाद करते हुए समय की भी मर्यादा है, कि विभाजन का दुख जो है वो केवल इतिहास का अध्याय नहीं रहा, वास्तव में एक ऐसा अनलिखा महाकाव्य है जिसने अपनी जन्मभूमि, अपनी मिट्टी,
अपनी छत और अपने परिजनों को भी पीछे छोड़ दिया था। इसलिए हम उससे आगे बढ़ते गए और ये ऐसी चमक थी वास्तव में जिस चमक ने उस पीढ़ी को, उन परिवारों को एक मजबूती भी दी, सशक्तता भी प्रदान की। मुझे स्मरण है, मैं अक्सर अपनी नानी से पूछता था कि आपने कैसे वो सब इतना दर्द सहने के बाद सरवाइव किया, तो वो मुझे एक बात कहती थी कि खुली छतों के दिए कब के बुझ गए होते, कोई तो है जो इन हवाओं के पर उतरता है। तो कोई तो था जो हमारी रक्षा कर रहा था, हमारे परिवारों को बचा रहा था, और उसके कारण से ही हम आगे बढ़ते गए। बीच में बहुत बार अवसर आया, हमारे वक्ताओं ने भी भारत के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त किया, जिन्होंने विभाजन की इस विभीषिका को मनाने की मान्यता दी, जिससे कि ये वेदना जो है ये इतिहास के पृष्ठों में भी जीवित रहे और भविष्य के रूप में, हमारी चेतावनी के रूप में भी हमारे सामने उपस्थित रहे। इसके लिए विशेष रूप से कुलगुरु जी का आभार है, क्योंकि उनकी संवेदनशीलता और उनकी दूरदृष्टि और उनका नेतृत्व, यही वास्तव में इस कार्यक्रम को आयोजन करने के लिए हमारे लिए प्रेरक बना है। और दिल्ली विश्वविद्यालय केवल विद्या का केंद्र नहीं है, ये संवेदना और करुणा का भी प्रांगण है। साथ ही साथ विश्वविद्यालय का प्रशासन, सभी विभागाध्यक्ष, प्राध्यापक, उपस्थित मातृशक्ति, छात्र छात्राएं, हमारे परिश्रमी कर्मचारी, उन सब साथियों का मैं हृदय से धन्यवाद प्रकट करता हूं, जिनकी निष्ठा और सहयोग के कारण से ये संगोष्ठी सफल और सार्थक बनने की दिशा में चल पड़ी है। और विभाजन की पीड़ा को याद करते करते हमको समाज की ये धारा कैसे प्रवाहित बढ़ती रहे, इसमें भी स्मरण रखना है। इस दर्द को विस्मृत नहीं होने देना और इस दर्द को विलीन भी नहीं होने देना। ऐसी बातें यहाँ पर आई हैं। केवल अंत में एक लाइनें बोल के मैं अपनी बात समाप्त करूँगा कि जब बुद्ध अपने दरबार, क्योंकि आज 1947 नहीं है, आज हम 2025 के भारत में हैं। अशोक अपने दरबार में बैठे थे तो भिक्खु आए और उन्होंने कहा कि आपने तो जिसे कहते हैं बुद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया, आपके देश पर आक्रमण हो गया, तो आप क्या करेंगे? तो अशोक कहते हैं, मैं बुद्ध धर्म का अनुयायी, मैं शांति मंत्र का उद्गाता, मैं जग विख्यात अहिंसक हूं, हिंसा से मेरा क्या नाता। मैंने कलिंग के बाद कृपाणों को मयानों में बंद किया, मानव को जीवन दान देकर मानव का जीवन स्वच्छंद किया। लेकिन यदि मेरी धरती पर कोई भी संकट आएगा तो याद रहे अशोक फिर से कर में तलवार उठाएगा। फिर सम्मुख चाहे महाकाल भी टक्कर लेने आएगा तो निश्चित है वह भी अपनी चिर मृत्यु साथ ले जाएगा। जग के निर्माता को जग का विध्वंस भी करना आता है, भारत के हर सेनानी को निज आन पे मरना आता है, निज देश पे मरना आता है। आज 2025 का भारत है। आज विभाजन की पीड़ा को तो हम सहन कर सकते हैं, लेकिन ऐसा दोबारा होने नहीं देंगे, इतना पूर्ण विश्वास हम सब रखते हुए इस कार्यक्रम को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। With this, we come to an end to the inaugural session of the day-long national seminar